યોગઃ કર્મસુ કૌશલમ. હવે એ શેડ્યુલ પાર્ટિસિપન્ટ ભરી દે એટલે સમજી લે અને એનું એનાલિસિસ કેવી રીતે થાય, કેવી રીતે સ્ટેટિસ્ટિકલ ટેસ્ટ એપ્લાય થાય વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એસપીએસએસ, એ ટ્રાય કરીશું એક ડેમો બતાવવાનો. અન્ડરસ્ટેન્ડ? હા, હાઉ મચ આઈ વિલ સક્સેસ, કારણ કે ઓનલાઈનમાં અઘરું છે એસપીએસએસ ને પ્રેક્ટિકલ બતાવવું, પણ આઈ વિલ ટ્રાય માય લેવલ બેસ્ટ. ધની સાહેબ ચાલુ કરીએ. ચલિए. Good afternoon to all. Yeah. I am Dr. Nikunj Patel on behalf of HRDC Gujarat University and fellow participants of third online refresher course. Welcome Dr. Vimal Trivedi sir. He will deliver his lecture on the logic of measurement in social science research. This topic is highly important for any discipline. We thank Dr. Vimal Trivedi sir for kindly agreeing to deliver lecture on this significant topic. To briefly introduce Dr. Vimal Trivedi sir, he is working as associate professor in Center for Social Studies, Veer Narmad University, Surat. His areas of interest have been mainly resource methodology, waste management, environmental issues, and higher education. He is an experienced statistician with over 3 decade experience analyzing and interpreting qualitative data. He is very knowledgeable in using statistical tools, SPSS, and methodologies. He providing consulting to team as well as analysis and interpretation of more than 100 study data. He was project consultant and trainer in various state and private universities department and government organizations like ICSSR and Ministry of HRDC, New Delhi. He assisted more than 60 MPhil and PhD research scholars under the guidance and consultancy scheme of ICSSR. He has immense working knowledge of SPSS. He mentor of SPSS for SPSS South Asia Pacific Limited, Bengaluru. He has over 25 years of experience in training and he has developed his own concept of conducting the most efficient training. He was a course director of various national level training programs like computer application in social science, research methodology in social science, orientation of social science research. He has completed 8 major research projects, published more than 30 articles in peer-reviewed journals, and published 2 books. I welcome you, sir, to deliver the lecture. Over to Trivedi, sir. Yeah, thank you. Thank you, Professor Nikunji and Professor Rajendra ji, and all the participants of this batch. To learn research methodology or to learn the approach of research methodology is quite helpful when you are conducting a research study. Not only for the PhD, but after the PhD, whatever your academic journey, 30 years or 40 years or 50 years, you need to learn, I'm not saying either or, but you need to learn both the approach, quantitative and qualitative, both the approach. Earlier, at least 30 years back or 25 years back, you just pick up the journal and you identified that the researcher either depend on quantitative or qualitative. But because of the computer application in the field of social science, nowadays social science talking about the mixed method. Mixed method means you are considering both the approach, quantitative and as well as the qualitative. Quantitative means number, whatever the information you have through the interview schedule, you convert into the number, that is a quantitative. And the information what you have collected as it is, and you analyze whatever the respondent has given information in paragraph, and you analyze this paragraph from the respondent, and that is a qualitative. To me, both approach is useful, depend upon your research issue, depend upon your objective of the study, depend upon what you want to do with the data. So when I say data, that means today I am talking about the quantitative, because SPSS is useful
when you have a quantitative data. Now, when I refer the quantitative data, understand first the level of measurement. Why level of measurement is important? Because it's directly linked with the various statistical tests. Various statistical. For example, just I am giving you info there that suppose you want to apply a chi-square test. Chi-square test. Now, suppose your guide says that in your data you need a chi-square test. Okay, but do you know that chi-square test and the assumption of chi-square test? If you are not aware about the assumption of the chi-square test, then again after collecting the information, you will not or you are helpless. So first thing is that level of measurement is important. So I will go through the slide and begin with my lecture. Okay, now it is visible. Hello. Yes, sir. Okay, okay. So I begin with this logic of measurement in social science research. So today's lecture in next 90 minutes, I will try to give overview of unit of measurement. When I say unit of measurement, that means there are 4 levels in measurement in social science research. Third thing is sources of error in measurement. And the fourth is data type. And the last one is I will try to accomplish the scaling technique. Before you begin your research study, please consider the level of measurement. Why I am saying? Because make sure you are using the correct statistical test to analyze your data. The first stage is any data analysis is to identify the correct statistical test to analyze your data. Now I just give you some overview. The process of any research, that is study design, second hypothesis or research question you are trying to answer from the field. Third one is level of measurement of variable and the types of data you have used. So for me, before analyze the data, 3 stage is important: types of data, level of measurement, and missing value. Missing value is also important. Generally, in statistical language, we say the error 1 and error 2. Measurement is the foundation of any scientific investigation. Everything we do begin with the measurement of whatever is we want to study. And the third one is measurement is the assignment of the number to object. Object means the answer we received from the respondent. The answer we collect on the basis of our objective. हम कहते हैं ना कि हमें एग्जामिन करना है कि क्या जमीन लैंड is significant related with the education. The land is significantly related with the caste, with the religion, with the migration. तो जब हम इसको करते हैं and we collect the information, the land pattern, the pattern of the caste, the pattern of the religion from the field, और तो हम उसको assign करते हैं. We provide this some number, and that is a quantification of data. Quantification means, or you can say the codification of data. Okay. So when we use interview schedule to obtain information from the respondent, and I'm just giving you the information, simple question you ask to the respondent, that how often do you take print out both the side of the paper? आपने प्रश्न पूछा कि पेपर का दोनों साइड आप प्रिंट आउट आप कितनी बार लेते हो? So and you have a interview schedule, and you have a question like that. One is an answer like that. One is never, 2 rarely, 3 sometimes, 4 is quite often, and 5 is always. This is a pre-coded interview schedule, or other term you can say that close-ended question. It's a close-ended question. That means whatever the respondent provide the answer, you are not interested. आप respondent ने जो जवाब दिया उसमें interested नहीं है. आप interested है कि respondent को आप कहते हैं कि ये जो मैंने कैटेगरी की है वो कैटेगरी में आप बताइए कि आपका रिस्पॉन्स क्या है.
ठीक है, तो ये क्लोज एंडेड है एंड सेकंड वन इज ओपन एंडेड. I will let you know where is the error arise when you have a close ended and where is the error arise when you have a open ended question. तो आपको क्वेश्चंस पूछने से पहले समझना पड़ेगा कि प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मुझे क्लोज एंडेड में मिलेगी या ओपन एंडेड में मिलेगी. फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग यू इंफॉर्मेशन. व्हेन यू आस्क द इनकम, when you ask the income, people are not giving you the correct income, but you can take the help from the statistician. Statistician suggests that okay, you ask the income whatever the figure he or she disclose, लेकिन उसको आप रेंज दीजिए, तो वो रेंज में वो करेक्ट आपको इंफॉर्मेशन देंगे. फॉर एग्जांपल, लेस देन और इक्वल टू 10,000, 10,001 to 20,000, 20,001 to 40,000, and 40,001 to 60,000, like that. So whatever the information you want to collect from the respondent, you have to understand the respondent, the criteria कि वो किस इंफॉर्मेशन में क्या मुझे प्रिसाइज आंसर देंगे, नहीं देंगे, तो मैं क्वेश्चंस को किस तरह से पूछूं तो मुझे इंफॉर्मेशन प्रिसाइज मिले. So how the idea behind is to reduce the error. The idea behind is to reduce the error, और जिसको हम कहते हैं sample error. Okay, so we are assigning a number to an object, that is a response. 1 is never, 2 is rarely, 3 is sometimes, 4 is quite often, and 5 is always. So this is the level of measurement. Now I am talking about the types and level of measurements in four level of measurement. Okay, so before that, I am just giving you some idea about the variable. You have heard about the variable, I think. Okay, and the most of the participants are PhD. They are doing PhD, or some of have completed the PhD. Hello, all the participants are doing PhD, or they are research scholar. Hello, I am doing. Most of them I have completed, sir. Thank most have completed. Okay, Yes, sir. okay. So I think you understand about the variable. There are two kinds of variable. One is scale and second one is categorical. Okay, in the scale there are two. One is continuous and second one is discrete. Whereas in categorical there is a ordinal and the second one is nominal. Okay, I will explain all these four. Continuous, I have already given the example. Any value height is a continuous. Okay, and discrete, the number of children. Okay, so discrete and continuous, but it's a scale. It's a scale. You are measuring, and that is why it's a scale. But it's a categorical. For example, gender, you provide 1 is male, 2 is female, or religion, Hindu is 1, Christian is 2, Muslim is 3, whatever number. So that is a categorical, and there is a direct link. The types of variable and the various statistical tests. And I have already mentioned that in the chi-square test, the level of measurement should be categorical. Okay, either ordinal, nominal, or interval. Okay, so level of measurement is important before you analyze the data. Okay, so there are 4 level in measurement. One is nominal, second one is ordinal, third one is scale. In the scale, there is a ratio and the interval. So I will explain these 4 level of measurement. Okay, and for example, just I'm giving you an overview. For example, you have a categorical data. I already mentioned gender, 1 is male and female is 2, religion, Hindu is 1, Christian is 2, Muslim is 3. Whenever you have a categorical data, the best appropriate statistic is summary. Is a summary. You can summarize the data, either percentage, proportionate, that is proportionate, and the third one is frequency, outcome. Okay, how many male, how many female, how many Hindu, how many Christian, how many Muslim. So when you have a categorical data, the appropriate statistic is frequency, percentage,
and we called the summarized statistic. Okay, I have given this that 95.4% female are clerical worker, while only 60.9% of male are clerical workers. So you are not giving the effect of one variable to another variable. You are talking about univariable, one variable at a time. So it means the categorical variable provide you the descriptive statistics, descriptive percentage, frequency, like that. So when you have a ratio variable, I have already mentioned interval and the scale. When you have a ratio variable, typically summarized using average or means. Average weight of male student is 65 kg. So measurement provide you the various statistical techniques. Okay. Now, so before sources of error, I will just explain you the level of measurement in a detail. In any empirical research, in social science require both accurate and reliable measure. So collection of data takes many forms in social science, including measurement of perception and opinion. आप जानते हैं कि सोशल साइंस में हम परसेप्शन या ओपिनियन से डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है. हम उनको आप देखिए हमारा इंटरव्यू शेड्यूल है, तो हमारा इंटरव्यू शेड्यूल में हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम चेक नहीं करते. वो मान लीजिए हम पूछते हैं कि आपका बर्थ डेट क्या है, तो हम उनको ये नहीं कहते कि आधार कार्ड लाइए, एविडेंस दीजिए कि आपका बर्थ डेट क्या है. तो वो जो कहता है वो हम स्वीकार करते हैं, और दैट इज एथिक्स इन सोशल साइंस रिसर्च. ठीक है ना? आर यू एग्री विथ मी? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So whenever you have a perception, whenever you have an opinion from your respondent, the measurement is important. So when it comes to quantified of people, perception. देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि हम इंटरव्यू शेड्यूल में परसेप्शन से डेटा लेते हैं, तो परसेप्शन से डेटा तो आ गए, बट नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दैट डेटा. परसेप्शन वाला जो डेटा है वो डेटा को हम कन्वर्ट करना है टू क्वांटिफाइड. सो व्हेन इट कम्स टू क्वांटिफाइड द पीपल परसेप्शन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, एंड by the way it is linked with the statistical technique. So before you collect the data during a research study, I am referring survey research. Okay, why I am insist, I am not talking about the qualitative data. I am only strictly talking about the quantitative data. So consider carefully which of the 4 type of data you are collecting and how you will use them once you have them. So for example, you have to examining the average income. So that obviously your data measurement should be interval or ratio. So now I am come to the first one, nominal scale. What is the nominal scale? Are you aware about the measurement of data? Hello, any one participant who know about the level of measurement? Please let me know why we say nominal scale. What is the theory of the nominal scale? So this is one of the categorical part of data, sir. Categorical response. That I have already given. That nominal, ordinal, and interval is a categorical variable. Okay, but why we say nominal variable? For example, gender, one is male, female is 2. It's a nominal. But why we consider gender as a nominal variable? We have to clear our concept. Okay. Definitely. Anyone? हाँ विमल भाई नमस्कार. हाँ प्लीज. हाँ तो जिसमें जो मेरे डेटा में टाइप आते हैं, प्रकार आते हैं, तो जो जेंडर में है मेल, फीमेल एंड अदर्स, तो इसमें हम ये नॉमिनल कर सकते हैं. नहीं, लेकिन क्यों नॉमिनल है? उसका कैरेक्टर एट्रीब्यूट है इसलिए सर. है एट्रीब्यूट है इसलिए. एट्रीब्यूट्स तो सब में है. मैं बताऊं, चलिए लो इनकम, मिडिल इनकम, हाई इनकम, तो उसमें भी एट्रीब्यूट्स है.
उसको हम हाई टू लो या लो टू हाई कैटेगराइज नहीं कर सकते, इसलिए सर। Anyone wants to add? If I say that answer is not truly completed, the answer Yes. is still needs some correctness. Anyone? Sir, is Sir, it because there's no absolute zero? एब्सोल्यूट जीरो तो रेशियो में आता है। एब्सोल्यूट जीरो, फॉर एग्जांपल इनकम, जिसकी इनकम नहीं है तो एब्सोल्यूट जीरो है। मेल फीमेल में कहाँ आया एब्सोल्यूट जीरो? इसमें इसलिए नहीं मैं है, कह रहा हूं, इसलिए इसमें आप नहीं समझ है। रहे हैं ना, आप 1 मिनट, आप समझ रहे हैं ना कि एक आंसर की जगह मल्टीपल आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कंफ्यूजन है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इज इट सर क्लियर? सर इसके अंदर सर ऐसा है कि मेल फीमेल का जो संख्या आता है वो या तो जीरो आएगा या कोई परफेक्ट नंबर आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉमिनल वेरिएबल। नो, नो, आई से दैट दिस खंडित आंसर, श्रेणी है वो। नहीं, आई से दिस खंडित आंसर इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट वन। हाँ पल्लवी, प्लीज पल्लवी कैरी ऑन। वो खंडित श्रेणी में आता है ये मेल फीमेल। चलिए, मैं टाइम बहुत जा रहा है, मैं आपको सर एग्जैक्टली इसके ऊपर और कोई गाणितिक क्रिया नहीं हो सकती है, प्लस माइनस या कुछ भी नहीं। नहीं, ये सब से सब गलत आंसर है। ऑल आंसर आर नॉट करेक्ट। द आंसर इज वेरी वेरी प्रिसाइज। आंसर इज द नॉमिनल स्केल, also called dummy coding, simply places people, events, perception, etc. into category based on their common characteristic. Number one, that is the number one. Second one is the data are naturally suited to the nominal scales, such as male versus female, Hindu versus Christian. Second thing. Third one is you are not comparing. Understand? प्लीज कीप इट इन राइट। आप लिख दीजिए, आपकी 30-40 इयर्स की एकेडमिक जर्नी में ये आप लिख दीजिए। नॉमिनल स्केल, मैं इसलिए हिंदी में लिख कह रहा हूं, ठीक है, मैं अंग्रेजी में पहले कह देता हूं, फिर आप सुन लीजिए। नॉमिनल स्केल फॉर्म द बेसिस ऑफ एनालिसिस सच एज एनालिसिस ऑफ वेरिएंट, बिकॉज those analysis require that some categories compared to at least one other category. Okay, समझ लीजिए। नॉमिनल इसलिए कहते हैं कि यहां मेल और फीमेल को कंपेयर करके हम डेटा नहीं डाल रहे। समझे आप समझिए कि मान लीजिए आपका सर्वे है, उसमें 100 फीमेल है और 60 मेल है, तो आप 1 नंबर फीमेल को देते हैं और 2 नंबर मेल को देते हैं, क्योंकि फीमेल आर मोर रिस्पोंडेंट इन योर स्टडी, तो आपने इसलिए 1 नंबर दिया है और 2 नंबर। यू आर नॉट कंपेयरिंग द कैटेगरी। कैटेगरी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जब कैटेगरी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और आप एक नंबर दे रहे हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर दे रहे हैं, तो इसको नॉमिनल कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस यस सर। कंसेप्ट क्लियर हो गया? या सर। यस यस यस। ऐसा नहीं है कि भारत में हिंदू ज्यादा इसलिए उसको 1 नंबर दिया जाए। आप उसको 5 नंबर दीजिए, मुस्लिम को 4 नंबर दीजिए, क्रिश्चियन को 22 दीजिए, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसलिए इसको नॉमिनल स्केल कहते हैं कि जो कोड देते हैं 1 इज मेल 2 इज फीमेल, तो मेल और फीमेल का कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करे बगैर आप एक नंबर दे रहे हैं, इसलिए इसको नॉमिनल कहते हैं। ठीक है? इज इट क्लियर? Yes sir, yes sir. Yes sir, yes sir, yes sir. So the nominal scale is the lowest form of the measurement because it does not capture information about the focal object other than whether the object belongs to does not belongs to a category. इसका मतलब हुआ कि मेल और फीमेल, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, इसका आप रिलेशन एस्टैब्लिश करके आप कोड नहीं दे रहे। मैं इसका एग्जांपल आपको ऑर्डिनल के सापेक्ष में मैं बताऊंगा। ठीक है? ऑर्डिनल में। ठीक है, चलिए सेक 1 दी। नाउ विद इन द नॉमिनल
within the nominal one more variable is important, और जिसको हम कहते हैं डाइकोटोमी. ठीक है, डाइकोटोमी वेरिएबल, ये भी आपको समझना पड़ेगा. ये आपको इसलिए समझना पड़ेगा, वेरियस स्टैटिस्टिकल टेस्ट में डाइकोटोमी वेरिएबल, जो आप डमी वेरिएबल एनालिसिस करते हैं रिग्रेशन में, तब ये आता है डाइकोटोमी. तो आप समझ लीजिए कि डाइकोटोमी किसको कहते हैं. ठीक है, आपको किसी को पता है कि किसको डाइकोटोमी वेरिएबल कहते हैं? जैसे नॉमिनल हो गया, इसे डाइकोटोमी किसको कहते हैं? 0 1 जिसको देते हैं उसको डाइकोटोमी कहते हैं सर. किसको? 0 1 जिसको देते हैं वैल्यू, उसको डाइकोटोमी कहते हैं सर. That is true. That is true. I agree. But why 0 and 1? Why 0 and 1? Why not 1 and 2? Why not 1 and 2? Is it clear? I am agree with you. 0 and 1 is perfectly fine. 0 is no and 1 is yes. That means Don't know sir. Have not, sir. I'm giving you explanation. Dichotomy variable means there are only two answers. In the question, only two answers. For example, I ask you, are you at home? Are you at home? You said no or yes. मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आप बाहर है कि नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आप घर पे हो. ठीक है, तो आप क्या दो आंसर देंगे? आइदर यस और नो या यस. तो इसको डाइकोटोमी कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? डाइकोटोमी मींस आप प्रेजेंस हो या प्रेजेंस नहीं हो. इसका सिंपल उदाहरण दे रहा हूं. आप लाइट का स्विच करते हैं, तो लाइट को स्विच ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट चलती है, स्विच ऑफ करते हैं तो ट्यूबलाइट ऑफ होती है. ठीक है ना? इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Dichotomy variable is again it's a categorical. Again it's a category. लेकिन इसका महत्व मैं आपको सेकंड सेशन में सिखाऊंगा जब मल्टी रिस्पॉन्स टेक्निक हम करेंगे. मल्टी रिस्पॉन्स टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आपने क्वेश्चन एक पूछा है और रिस्पोंडेंट ने मोर देन वन आंसर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को पूछिए कि आप कल कॉलेज में क्यों नहीं आए, तो वो कहेंगे कि मुझे लाइट बिल भरना था, फिर मेरे बच्चे की स्कूल फी भरनी थी, मेरे पड़ोसी के वहां ये फंक्शन था, तो मैंने सोचा कि एक छुट्टी मैं ले लूं. यू अंडरस्टैंड? सो टू टेक द लीव नॉट फॉर वन रीजन, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन. लेकिन आपने क्वेश्चन एक पूछा है और आंसर एक से ज्यादा है, तो इस वेरिएबल को ट्रीट करना है, तो इस वेरिएबल को हम डाइकोटोमी करते हैं, डाइकोटोमीज, और फिर उसको मल्टी रिस्पॉन्स टेक्निक से एनालिसिस करते हैं. वो मैं सेकंड सेशन में ले लूंगा. लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बिफोर एनालिसिस यू हैव टू अंडरस्टैंड द वेरियस वेरिएबल मेजरमेंट. सो नाउ अंडरस्टैंड नॉमिनल. इज इट क्लियर? नॉमिनल मीन्स कंपेयर नहीं करते हैं, मेल और फीमेल का कंपेयर नहीं करते, हिंदू क्रिश्चियन का कंपेयर नहीं करते, और एक नंबर देते हैं, इसलिए इट्स ए नॉमिनल. डाइकोटोमी यहां अलग है. डाइकोटोमी में दो ही आंसर की पॉसिबिलिटी है, आइदर नो एंड द यस, नो एंड यस. तीसरा आंसर नहीं है कि डोंट नो, नो इंफॉर्मेशन, नॉट एप्लीकेबल. ये सवाल ही नहीं है, सिर्फ नो एंड यस. So that is a dichotomy. Is it clear? Okay. Now the second one is, I'm just giving you the coding of nominal scale can be accomplished using the number, letter, label. हाँ, आप nominal को letter या label से दे सकते हैं. I'm just giving you apply. M for male and F for female. H for Hindu, M for Muslim, C for Christian, B for Buddha, J for Jain. You can, but whenever you give A, B, C, D, keep it in mind. Your data is not numeric. And SPSS is quite helpful when your data is in quantification. Data quantitative, numeric में होगा. तो SPSS का यूज करना है, तो मुझे लगता है कि M फॉर मेल एंड F फॉर फीमेल की जगह 1 फॉर मेल या 1 फॉर फीमेल एंड 2 फॉर मेल, दैट इज द बेटर अप्रोच.
Okay, so now second one, ordinal scale. What is ordinal scale? The ordinal scale has at least one major advantage over the nominal scale. ठीक है, ऑर्डिनल स्केल में नॉमिनल से एक एडवांटेज है, और कौन सा है एडवांटेज है कि यहां आप विद इन द जो आउटकम है वो आउटकम का कंपेयर करके आप कोडिंग करते हैं. इज इट क्लियर? ओके, Yes, इज sir. इट क्लियर? ऑर्डिनल का मतलब है कि the scale contain all of the information captured in the nominal scale. नॉमिनल में जो हमने कैप्चर की है इंफॉर्मेशन, all the information included, but it also rank the data from the lowest to highest. From lowest to, लिख दीजिए. देखिए, मैं हर मेरे लेक्चर में कहता हूं रैंक दो तरीके से होता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. सोशल साइंस में थंब रूल है, सोशल साइंस में थंब रूल है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट होता नहीं होता है. तो आप जब भी कोडिंग कीजिए तो कोडिंग लोवेस्ट टू हाईएस्ट कीजिए, नॉट हाईएस्ट टू लोवेस्ट. इज इट क्लियर? सो ऑर्डिनल स्केल जो सेकंड स्केल है उसका एडवांटेज ये है कि वहां मेल फीमेल, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वो था. यहां आपको एक रैंक मिलता है, और रैंक जैसे ही बढ़ता है अकॉर्डिंगली आपका कोडिंग भी उस तरह से उस दिशा में इंक्रीज होता है. मैं एग्जांपल दे सकता हूं, लो इनकम, मिडिल इनकम, हाई इनकम. अब आपका कोडिंग क्या रहेगा? प्लीज लेट मी नो. आपका कोड क्या रहेगा? लो इनकम का कोड क्या रहेगा? 1. फिर मिडिल इनकम 2. एंड हायर इनकम 3. यस. सो इट इज नाउ अंडरस्टूड. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई आपका कोडिंग का जो नंबर है वो भी इंक्रीज उसी दिशा में हुआ. उसी दिशा में, समझे आप? उसी दिशा में मीन्स इंक्रीज पैटर्न में, नॉट इन डिक्रीज पैटर्न. ठीक है? सो द ऑर्डिनल स्केल कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन, नॉमिनल में जो कैप्चर किया है, लेकिन एक आपको रैंक भी दे रहा है. ठीक है? तो जो हम कहते हैं ना कि सिंपली जो कैटेगराइज किया है जो ऑब्जेक्ट को मीन्स, जब भी मैं ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करूं इसका मतलब है आउटपुट. जो आपने रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन पूछा है कि भाई आप कौन सी टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो वो कहता है कॉलगेट, बिनाका, देन पेप्सोडेंट. तो ये इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, आउटकम. ठीक है? तो ऑब्जेक्ट को जो सिंपली कैटेगरी करते हैं, इसकी जगह हम अभी ऑर्डर में कैटेगरी करते हैं, तो इसको ऑर्डिनल कहते हैं. ठीक है? So that was the second one. Then the ordinal scale rank order the subject by how many so and here you will not get the distance between two objects. समझे? अब मैं लिमिटेशन की बात कर रहा हूं. देखिए, दो चीज है. नॉमिनल से यहां ऑर्डर में एक आपको एडवांटेज मिल रहा है कि जैसे ऑर्डर बढ़ता है, रैंक बढ़ता है, आपका कोड बढ़ता है. सो यहां आपको थोड़ा रीच इंफॉर्मेशन मिलता है नॉमिनल से. ओके, व्हेन यू हैव ए रीच इंफॉर्मेशन देन यू हैव ए more space for the data analysis, more space for various statistical tests. ठीक है? तो कहाँ ऑर्डिनल यूज करना है, कहाँ नॉमिनल यूज करना है, ये जब आप इंटरव्यू शेड्यूल बनाते हैं तब आपको ध्यान में रखना पड़ता है. नाउ द थर्ड वन, I think now you are clear. 3 variable we have discussed: nominal, ordinal, and dichotomy. Okay, can I switch over to interval? Yes, sir. Is there any question? Any question? No, sir. No, sir, absolutely fine. Okay. So now the third one is interval scale. In the interval scale,
unlike the nominal scale that simply places object into the category, or the ordinal scale that rank the order the object. But the interval scale indicate the distance one object is from another. Is it clear? समझे मैंने क्या कहा? मैं Yes, sir. Yes, कह sir. रहा हूं कि ऑर्डिनल में आपको वो मिल रहा है कि लो इनकम, मिडिल इनकम, हाई इनकम, लेकिन लो इनकम और मिडिल इनकम के बीच में डिस्टेंस कितना है? वो डिस्टेंस जो है वो मेजर आप नहीं कर सकते, तो अगर मेजर आपको करना है, ठीक है ना, तो आप इंटरवल वेरिएबल रखिए, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ लो इनकम, मिडिल इनकम एंड हाई इनकम, अगर मैं इस तरह से वेरिएबल करूं कि लेस देन और इक्वल टू 10,000 इज लो इनकम, 10,001 to 25,000 is the middle income, and 25,001 and above is the high income. Is it clear? So here lower boundary and upper boundary provide you the difference, provide you the distance. Is it clear? Yes, sir. ठीक है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि फार्मर्स की कैटेगरी की स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर एंड बिग फार्मर, ये आपका ऑर्डिनल हो गया। अब इसकी जगह आप कहिए कि विलेज में से डेटा निकाल के आप कहिए कि जिसके पास 1 एकड़ से कम है, फॉर एग्जांपल 2 बीघा, आपका एक आउटकम आया कि जिसमें एक फार्मर के पास 2 बीघा जमीन है और दूसरे फार्मर के पास 20 एकड़ जमीन है। अब 2 स्केल आ गए, एक लो एंड एक अपर। अब आप एवरेज निकालिए, एवरेज लैंड कितनी है? अब एवरेज लैंड आया 3.5-4 एकड़, जस्ट एब्स्ट्रैक्ट जवाब दे रहा हूं, 4 एकड़। एक मिनिमम है, एक मैक्सिमम है, एक एवरेज है। तो आप 3 रेंज निकालनी है, तो आप क्या करेंगे कि 2 बीघा से लेके 2 एकड़ जो है, जिसके पास 1 या 2 एकड़ है, इसको मैं स्मॉल फार्मर कहूंगा। 2.1 मीन्स 2 एकड़ और 1 बीघा से लेके 5 एकड़ मीन्स एवरेज से नीचे और एवरेज से ऊपर, इसको मैं सेकंड ग्रुप करूं तो ये मेरा सेकंड कैटेगरी हुआ। और जिसके पास 5 या उससे ऊपर है, जो मैंने कहा ना कि 10 एकड़, तो 5 से ऊपर है, उसको मैं बिग फार्मर कहता हूं। तो लो, स्मॉल, मार्जिनल एंड बिग फार्मर, वो ऑर्डिनल तो आ गया, लेकिन एट द सेम टाइम डिस्टेंस भी मुझे मिला। इज इट क्लियर? Yes, Fine, sir. sir. Is it clear? So that is a interval scale. That is a interval scale where you have a lower boundary and the upper boundary. And the last one is ratio scale. The ratio scale that contains the richest information. Mind well, why I am using richest information? Because the ratio scaling captured the information given by the respondent. You are not converted into the category. The same example I am giving you, the land. आपको लैंड जो है, तो आप क्यों रिस्पोंडेंट के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं? आप गांव में जाइए, सर्वेयर के पास जाइए, और आप जितने आपका सैंपल रिस्पोंडेंट है, वो सैंपल रिस्पोंडेंट की कितनी जमीन है, वो डेटा ले लीजिए। तो वो डेटा आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किसके पास 10 गुंठा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, 5 हेक्टर जमीन है। When you have collect the information, then आप एक यूनिवर्सल स्केल पे उसको कन्वर्ट कीजिए।
आपको आपको बहुत बार ऐसा होगा कि फील्ड में आप जो स्केल लेके गए हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एरर कम करने के लिए ये आप कीजिए, इंफॉर्मेशन ले आइए। किसी ने कहा कि मेरी जमीन गुंठा में है, किसी ने कहा कि मेरी जमीन बीघा में है, किसी ने कहा मेरी जमीन एकड़ में है। आप टैप कीजिए, जिसको हम कहते हैं रेशियो स्केल, आप लिख दीजिए। देन यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड कम टू योर डेस्क। आप अपने ऑफिस में आइए, आपके आपके फील्ड एरिया में से आप अपनी चैम्बर में आइए, एंड देन इसको एक यूनिवर्सल स्केल में ले आइए कि चलिए इसको मुझे गुंठा भी आ जाए और हेक्टर भी आ जाए, इस तरह से मैं उसको एक ही डेटा में ला सकूं। तो कब आप सब कर सकते हैं? व्हेन यू हैव ए रेशियो स्केल। इसलिए मैं कह रहा हूं द रिचेस्ट इंफॉर्मेशन यू हैव। अदरवाइज व्हाट हैपन, आप क्वेश्चनर लेके गए कि भाई लेस देन और इक्वल टू 2 एकड़, 2.1 से लेके 5 एकड़ एंड मोर देन 5 एकड़। अब आपने सैंपल लिया, पूरा गांव तो नहीं ले रहे, सैंपल लिया, और सैंपल में हो सकता है कि आपको जो डेटा मिले वो सभी डेटा आपको पहली कैटेगरी में मिल गया, ये पॉसिबल ही है। तो इसलिए कहते हैं कि रेशियो डेटा आप लीजिए, कैप्चर द एक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, वो आपको रिस्पोंडेंट से लेना पड़ेगा, लेकिन लैंड है या उन्होंने अपना जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उन्होंने पंचायत में कंप्लेन की है कि नहीं, तो वो आप पंचायत की जो मीटिंग है उसका एजेंडा में देख लीजिए कि पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट ने कंप्लेन की है। तो ये क्वालिटेटिव डेटा हुआ, और क्वांटिफिकेशन में परसेप्शन से आप उनके पास से डेटा लीजिए। तो स्केल इज इंपॉर्टेंट इन योर इंफॉर्मेशन। सो the distinction between interval and ratio scale is an important one in the social science. All both can capture the continuous data. Now understand, both the data capture continuous data, जबकि ordinal and the nominal capture discrete data. Is it okay? So these 4 levels of measurement influence how you collect and later analyze the data. So whenever you collect the wrong level, and you will end up having to adjust your research, not only the research, but you have to adjust the research design and the analysis. So make sure you consider carefully the level at which you collect the data, especially regarding what statistical procedure you intend to use once you have them. So please understand the level of information. So now I come to the second part, that is the sources of error in measurement. That is also important. Sources of error in measurement. Measurement should be precise and unambiguous in an ideal research study. Thus, objective is often not met with the entity. The researcher must be aware about the sources of error in measurement. So I'm just giving you the level where it happens. The first one is respondent level. At the time, the respondent may be reluctant to express strong negative feeling, or it may just be possible that she may have very little knowledge but may not admit as ignorance. तो एक चांसेस है कि जब आपका लेवल ऑफ मेजरमेंट में या सोर्सेस ऑफ मेजरमेंट है उसमें एरर आ सकती है। ठीक है, तो ये मैंने कहा ना, इनकम का आप जो है वो मेजरमेंट आप जो लेना चाहते हैं कि रेशियो में आए, लेकिन नहीं आ सकते हैं, तो ये रिस्पोंडेंट लेवल पे, क्योंकि उसको शंका है कि मेरा इनकम का डेटा का वो क्या यूज करेगा जो स्टडी का, तो वो उनको मालूम नहीं है कि इनकम को आप आपके और वेरिएबल के साथ एग्जामिन करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि व्हेन वी आर कंडक्टिंग ए स्टडी ऑन डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन प्रोग्राम, दैट इज म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो हम इवैल्यूएशन स्टडी कर रहे थे। एट दैट टाइम
वी हैव ए रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और हमने पाया कि बहुत सारे आर्टिकल्स और बुक्स में लिखा है कि इनकम जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट। समझे? जो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट जो है, घर में से जो कचरा निकलता है, और उसमें भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मींस पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, इस प्रकार का जो है जिसको रिसाइकल वेस्ट कहते हैं, वो वेस्ट जो है वो इनकम के साथ हाईली कोरिलेटेड है। जिसकी इनकम ज्यादा उतना वेस्ट ज्यादा, जिसकी इनकम कम उसका वेस्ट कम। तो ये हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब फ्रेम ऑफ क्वेश्चनर करें ना, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का कितना इन्फ्लुएंस होता है। तो ये हमने पाया, एंड वी हैव डिस्कस एंड वी हैव डिराइव्ड कि हमको नॉट ओनली आस्क द इनकम, हमको ये भी पूछना है कि उनके वहाँ टीवी जो है वो 50 इंच का है, उनके वहाँ फ्रीज है वो डबल डोर का है, उनके वहाँ कार है कि नहीं, कार है तो वो फैमिली कार है, एंट्री लेवल की कार है या प्रीमियर कार है। तो हमने उसका इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, और फिर उसका एक स्कोर बनाया कि अगर उसके पास 21 इंच का टीवी है तो हम इसको स्कोर 1 देंगे, उसके पास 40 इंच और ऊपर का है तो उसको स्कोर 2 देंगे, एंड देन वी हैव सम अप सम स्कोर। तो अब जो स्कोर आया कि जिसका स्कोर हमारा था लेवल की मिनिमम कुछ 15 स्कोर था और मैक्सिमम 45 या 50 था, तो जो 30 और 35 के स्कोर के ऊपर का स्कोर है और जो स्कोर एवरेज से कम है, वो स्कोर के साथ हमने जो घर में से जो कचरा निकलता था, जो हमने पूछा है कि डेली आपके घर में से कितना कचरा निकलता है, तो वो कह रहा था कि 3 kg, 4 kg, 1 kg, 500 ग्राम, 200 ग्राम। तो जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो पैटर्न थी, वो पैटर्न कहीं ना कहीं हमारे स्टडी में भी वो मिली। अब वो तो एनालिसिस का पार्ट है, बट व्हेन वी गो फॉर सर्वे, हमें बहुत बार ऐसा हुआ कि जो रिस्पोंडेंट है, जो मैंने कहा ना रिस्पोंडेंट लेवल पे एरर, जो रिस्पोंडेंट है वो इग्नोर कर रहा था। उनको लग रहा था कि ये क्यों मुझे पूछ रहा है कि कार प्रीमियर है कि एंट्री लेवल पे है, वो क्यों पूछ रहा है कि मेरी इनकम कितनी है, वो क्यों पूछ रहा है कि टीवी का साइज क्या है, उसको कचरा के साथ क्या लेना देना। सो लेवल ऑफ मेजरमेंट में ये एरर आती है, और मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आप एग्री करते हो, करेंगे, जो स्टैटिस्टिक्स के नॉलेजेबल पार्टिसिपेंट है वो एग्री करेंगे, दे अंडरस्टूड द sample error, and that is why in social science we say that the level of significance, that is 0.05. 0.05 means out of 100 respondents, whatever the result we have derived, whatever the outcome we have, and on the basis of this outcome we say that X and Y are related on the basis of 95 cases, not from 100 cases. Means 5 respondents, I am capturing the information from 5 respondents, there must be some problem, there must be some error. So how you reduce the sample error, that is the important, and that is why I say that the sources of error in measurement is important. So first one is respondent लेकर, and the second one is situation arise. In some cases, situation factors may also come in the way of correct measurement. If the respondent feels that the anonymity in your assured, he may reluctant to explain certain feeling. That means the question, the order sometime is not in the way, then respondent think that if you have already asked. Now the second question is depend on the first question, and you have not asked immediately the first, then respondent think that you have already asked. Then the result, then the answer
is not getting the way you want. So these are the problem arise in the measurement level. And the last at the level of the instrument, which I have already given the idea that is not my but I am just giving that the poor printing, inadequate space in the reply, that is also the problem when you are capturing the information. Now I am coming on the scaling. Scale. How many participants know about the scale technique? Are you aware about the scale technique? Yes, Hello. sir. Okay. Okay. Is there any participant from education or psychology background? Yes, sir. Yes, sir. Psychology, sociology, economics, Okay. politics science. Okay. Generally, I have seen that Likert scale used by either from education background or from psychology background. आप देख लीजिए कि एजुकेशन और साइकोलॉजी के जो जो रिसर्चर है उसका मैक्सिमम यूज करते हैं, और उनके पास एक फॉर्मेट होता है कि मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट का उनको स्टडी है वुमेन एम्पावरमेंट का, तो उनको उनके पास 4 या 5 एरिया होता है कि वुमेन एम्पावरमेंट किस में, तो कि एक इकोनॉमी, फिर उनके घर में डिसीजन प्रोसेस जो होती है फैमिली में वो, उनका क्या बोलते हैं आउटसाइड वर्ल्ड में क्या बिहेवियर होता है, ये बच्चों के ऊपर उनकी इन्फ्लुएंस क्या होती है, ये तो एक कुछ कंपोनेंट करके उस कंपोनेंट में कुछ 10 या 15 क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर उसमें लिकर स्केल का यूज करके they try to understand the sensitivity of the respondent. उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो साइकोलॉजी और एजुकेशन के स्टूडेंट या रिसर्चर करते हैं. एंड आई हैव गॉन थ्रू, मैंने हाल ही में एक क्रिमिनोलॉजी के एक स्टूडेंट थे, धारी की एक स्टूडेंट थी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में वो पीएचडी कर रही है, तो वो क्रिमिनोलॉजी में कर रही है. तो वो उन्होंने जो जेल में जो प्रिजनर है उनके वो स्टडी कर रही है, तो उनका स्टडी में स्केलिंग का ज़्यादातर यूज़ था कि मुझे एग्जैक्टली उनका इंटरव्यू शेड्यूल याद नहीं है, लेकिन स्केलिंग इज ऑल्सो ए गुड टेक्निक as far as measurement is concerned. So in research, use quite often face the problem of measurement, especially when the concept to be measured are complex and abstract, and we do not possess the standardized measurement tool. In other words, we can say that while measuring attitude and opinion, we have faced the problem of their valid measurement. I already mentioned that the error. So how you reduce the error while you capture the information? As such, we should study some procedure which enable us to measure abstract concept more accurately. Measure of scaling. Scaling describes the procedure of assigning number to various degree of opinion, attitude, or other concept. Okay. The scaling technique, the scaling, if you want, by two ways. One is making a judgment about some characteristic of an individual and this placing him directly on scale that has been defined in terms of that characteristic. This is a theory. I will give you an example. First you understand the theory, then I will give you the example where it used, how it is effective, and what are the problem while you collecting the information. मैं आपको 2-3 चीज ऐसी बताऊंगा कि जो जनरली पीएचडी स्कॉलर अपने रिसर्च में गलती करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. कंडक्टिंग ए क्वेश्चनर इन सच ए वे दैट द स्कोर ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स असाइन हिम ए प्लेस ऑन ए स्केल. इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कहा ना कि आपने 10 स्टेटमेंट किया है फॉर एग्जाम्पल, और 10 स्टेटमेंट का आप स्कोर कर रहे हैं, 2 स्कोर करे, तो ये आपको समझना पड़े कि जो स्केल आपने रखा है वो स्केल रिफ्लेक्ट होता है स्कोर में. अगर नहीं होता है तो आपको आपकी स्केलिंग सिस्टम बदलनी पड़ेगी. वो कह रहा है
तो कंस्ट्रक्टिंग ए क्वेश्चनर इन such a way that the score of individual response assigned in a place on a scale. It may be stated that the scale is a quantum consistency of the highest point in terms of some characteristic, preference, favorableness, etc. That means strongly agree, agree, neutral, disagree and strongly disagree. तो ये सबके बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए, एक डिस्टेंस होना चाहिए और डिस्टेंस से आप मेजर कर रहे हैं. These scale point position are so related to each other. वो related होना चाहिए, interrelated, that when the first point happens to be highest point, that is strongly agree, the second point indicate the higher degree, so agree, and the third is neutral, then disagree and strongly disagree. So like that scaling system होती है. The term scaling is applied to the procedure for attempting determine quantitative measure of subjective, not objective, subjective abstract concept. ठीक है. So scale classification based on the number assigned procedure or scaling procedure may be broadly classified on the following basis. I do not want to go into the detail because it will take 1 or 2 hours. Subject orientation, response form, degree of subjectivity, scale properties, number of dimension, scale construction technique. तो ये वेरियस है, लेकिन आप उसको ऊपर कर सकते हैं ये स्केलिंग टेक्निक को. तो स्केलिंग टेक्निक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि स्केलिंग टेक्निक जो है, जो मैंने कहा ना कि आप जब भी करते हैं कि तो उसका बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मैंने अभी आपको कहा कि सब क्या क्या रिस्पॉन्स है, कि आपको रिस्पॉन्स फॉर्म में कैसे मिलते हैं और स्केलिंग का एरर क्या होता है, वो आपको समझना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, उसका डायमेंशन समझना पड़ेगा, तब आप स्केलिंग को समझ पाएंगे. तो उसको रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्केलिंग की आपको इंटरव्यू शेड्यूल में पायलट सर्वे करके उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी करके आप उसको स्केलिंग कर सकते हैं. मैं आपको उसको मेरी पीपीटी में बताता हूं कि कैसे स्केलिंग करते हैं उसका. जस्ट इट इज ए मैटर ऑफ वेरिएबल. देखिए ये आप देख लीजिए लिंकर स्केल में कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा है प्लीज रेट योर एग्रीमेंट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट आपने पूछा है कि आई प्रीफर टू शॉप ऑनलाइन रादर देन इन स्टोर. आपने एक स्टेटमेंट पूछा. फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का गवर्नमेंट ने आपको एक स्टडी दिया है और आपने स्टडी कहा है कि एक ऑनलाइन जो शॉपिंग होता है उसका एक इवेल्यूएशन कीजिए, और आपने वेरियस सिटी के एरिया में आपने उसको सैंपल किया है. फॉर एग्जांपल लोअर सेटलमेंट से कुछ लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, मिडिल इनकम के लोगों में से कुछ इंटरव्यू ले रहा है और हायर इनकम में से आप इंटरव्यू ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में जो मुझे सर्वे करना है तो मैं अहमदाबाद में बापू नगर जो ऐसा है एरिया है, या अहमदाबाद में रखियाल है जो इंडस्ट्रियल बेस्ड एरिया है, वहाँ जो लोअर इनकम ग्रुप रहते हैं या स्लम जहाँ रहता है, वहाँ मैं एक रिस्पोंडेंट लेता हूँ. फिर मैं जो स्ट्रीट में रहते हैं, जो छोटी छोटी जो स्ट्रीट है अहमदाबाद में जिसको कहते हैं सिटी एरिया, उसमें से मैं कुछ रिस्पोंडेंट को पिक करता हूँ. थर्ड जो मैं कर रहा हूँ कि जो ऑर्गेनाइज सोसाइटी है लेकिन मिडिल इनकम लोग रहते हैं, मिडिल इनकम जैसे कुछ एरिया जो है, जो जैसे रतनपुर है या कांकरिया है या जहाँ मिडिल इनकम पीपल रहते हैं, वहाँ से लेता हूँ. एंड द लास्ट वन जो है वो सैटेलाइट जैसा एरिया है जहाँ हायर इनकम पीपल रहते हैं, उस एरिया. अब मैंने रिस्पोंडेंट को चूज किया. अब मैं इंटरव्यू शेड्यूल में बना रहा हूँ कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो किससे करते हैं, पेटीएम से करते हैं, अमेजोन से करते हैं, लाइक दैट.
साल में कितना, महीने में कितना करते हैं, बैंक में आप जाते हैं कि नहीं, कि ई बैंकिंग करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है जो उस क्वेश्चन में उन्होंने जवाब ठीक दिया है कि नहीं, तो अब आप पूछते हैं, जो मैंने कहा ना लिकर स्केल, उसमें पूछते हैं कि द आई प्रीफर टू शॉप ऑनलाइन रादर देन इन स्टोर, आपने पूछा है, तो उसमें वो स्ट्रांगली एग्री कहता है, एग्री कहता है, नाइदर एग्री, नॉट एग्री, नॉट डिसएग्री, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। तो उसके मुताबिक आप जवाब दें। अब आपका स्टडी क्या है, व्हाट इज योर स्टडी? स्टडी है कि लोग जो है आपका जो है कि लोग अब शिफ्ट हुए आफ्टर द कोरोना, लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग में ज्यादा दिलचस्पी करते हैं, ज्यादा करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर कंपोनेंट। तो आप जब करते हैं कि वो कह रहा है कि यस आई एम प्रिफर्ड ऑनलाइन रादर देन द स्टोर, तो यू आर गिविंग 5 marks टू स्ट्रांगली एग्री, 4 mark एग्री, 3 mark neither agree, not dis, 2 disagree and 1 strongly disagree। तो आपका स्टडी एरिया के मुताबिक आप स्केलिंग कर रहे हैं, कि जिसको मेजरमेंट कहते हैं। तो आपको इस तरह से आपको स्केलिंग करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। वुमेन एम्पावरमेंट में एक स्टडी कर रहे हैं, और आप वुमेन एम्पावरमेंट में रिस्पोंडेंट जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट में उनकी सोच क्या है। तो जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, फॉर एग्जांपल, मैं रफली एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट आई डोंट हैव एनी इंटरव्यू शेड्यूल, बट यू अंडरस्टैंड। 2 क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं, दोनों का इंपैक्ट क्या होता है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं और दोनों को मैं एक में पॉजिटिव नेचर में पूछ रहा हूं और एक नेगेटिव इंपैक्ट में पूछ रहा हूं। आप समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल, आई आस्क द क्वेश्चन एज फार एज वुमेन एम्पावरमेंट इज कंसर्न या गर्ल एम्पावरमेंट इज कंसर्न, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट आर यू थिंकिंग दैट, क्यों आपको लगता है कि बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। समझ लीजिए, आपको लगता है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे समझते हैं कि बच्ची को तो इन लॉज में जाना है, उसको पढ़ा के क्या जाना है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड। तो यहां स्ट्रांगली एग्री जो कहते हैं, इसको यू आर गिविंग लेस मार्क, और स्ट्रांगली डिसएग्री कहते हैं यू आर गिविंग मोर मार्क्स। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, क्योंकि आपका मकसद है कि एम्पावरमेंट को टैप करना है। अब जो आदमी कह रहा है या जो फीमेल रिस्पोंडेंट कह रही है कि बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, तो आप उसको स्ट्रांगली एग्री को 5 मार्क नहीं देते। तो लिकर स्केल में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप मिक्स क्वेश्चन रखिए, ताकि रिस्पोंडेंट आपको क्वेश्चन को समझ के आंसर दे रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट आंसर दे रहा है। इसको हम कहते हैं मेजरमेंट की एरर, आपकी एरर। अब ए एरर आपको फिर स्टैटिस्टिक की टेस्ट अप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं डेटा मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सोशल साइंस रिसर्च। अब यही क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से पूछता हूं। चलिए दूसरा, चलिए एक क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं सेम। क्या आपको लगता है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अनएम्प्लॉयमेंट ये बच्चियों जो लेडीज है वो जॉब करती है इसलिए है। ओके, द सेकंड क्वेश्चन, 5 minutes. So the second question is, do you think that the unemployment is due to जो बच्चियों जो अभी जॉब करती है इसकी वजह से है? The same answer, strongly agree, you are giving 1 mark. Understand? फिर थर्ड क्वेश्चन है कि फैमिली में पानी की समस्या है, वो औरतों की है,
ठीक है, तो वहां भी स्ट्रांगली एक यू आर गिविंग 1 मार्क्स। ठीक है, अब मुझे अगर इंटरव्यू शेड्यूल बनाना है तो मैं ये क्वेश्चन को अलग तरीके से करूं कि मैं एक जगह पे पूछूं क्या पानी की समस्या है, फीमेल का है, तो स्ट्रांगली एग्री 1 2 3 4 5, स्ट्रांगली डिसएग्री 5। द सेकंड क्वेश्चन मैं अलग तरीके से पूछूं कि आपको कहूं कि क्या आपको लगता है कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, तो यहां स्ट्रांगली एग्री यू आर गिविंग 5 मार्क्स। इज इट क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes. can you explain? Sir. Can you explain again? हमने पहले क्या पूछा कि क्या आपको लगता है कि बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, उसमें स्ट्रांगली एग्री कह रहे हैं तो हमने उसको 1 स्कोर दिया, 1 स्कोर दिया। अब यही क्वेश्चन आप इस तरह से पूछते हैं कि आपको लगता है कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, अब यहां स्ट्रांगली एग्री है तो आप 5 मार्क्स देते हैं। तो इसका मतलब सर आप नेगेटिव पूछ रहे हैं कि पॉजिटिव पूछ रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। और बहुत बारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स जो होते हैं, अगर आप यहाँ जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको पूछ लीजिए, वो इस तरह से मान लीजिए एक आपने इश्यू का, हेलो एनी नॉइज, हेलो, किसी का मोबाइल पास में पड़ा है, अच्छा, तो आप पूछ लीजिए उनको कि एक इश्यू होता है और वो इश्यू का 15 क्वेश्चन होते हैं, जो 15 क्वेश्चन का फिर वो लोग स्कोर उसका टोटल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 15 क्वेश्चन में सभी में उसने स्ट्रांगली एग्री का, तो आपने 5 5 5 दिया तो कितना हुआ टोटल 75, और सभी में किसी ने स्ट्रांगली डिसएग्री का तो 1 1 1 1 करके 15 में आपने एक 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 दिया तो उसका टोटल हुआ 15, तो आपको स्कोर मिला 15 से 15 टू 45। अब आपको 15 टू 45 को आपको एवरेज निकाल सकते हैं कि इसी इश्यू में एवरेज स्कोर क्या है, इसी इश्यू में रेंज क्या है, इसी इश्यू को जो स्कोर है वो स्कोर को फिर आप सोशल डेटा के साथ देखते हैं कि उनका रिलीजियन क्या है, उसका वो मेल और फीमेल क्या है, उसका एज क्या है, उनका वो एजुकेशन लेवल क्या है, तो फिर वुमेन एम्पावर का जो स्कोर है वो स्कोर को आप फिर सोशल डेटा के साथ आप उसको रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो वहां जो आपका स्कोर है वो स्कोर गलत तो नहीं है, इसलिए आप रिस्पोंडेंट एब्स्ट्रैक्ट जवाब दे रहा है कि आपका क्वेश्चन को समझ के वो आंसर दे रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. But sir. Yes, sir. Yes. सर एक मिनट, हाँ 90% पेपर मैंने देखे हैं लिकट स्केल पे, तो एवरीबडी गिव द 1 2 3 4 5 फॉर स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री एंड strongly disagree. Even they cannot understand the question is positive or negative. 90% पेपर में से देता है। That is why I always suggest that put 1 or 2 question which different than your strategy of scaling. Okay, so how much time we have remained? Hello. 20 minutes. Okay. 20 minutes, sir. Okay. So your coding pattern should be according the answer of the respondent. But the main thing is respondent understood your question, respondent understood your issue, respondent understood why you are collecting the information. That is the important. Once your respondent understood your issue, understood your question, then only you tap the data measurement, then you tap the precise information, and that is why as a statistician I always suggest to my student
that don't think about the size of sample, think about the representation of the sample. ठीक है, आप और हम कहते हैं स्टैटिस्टिक की भाषा में, एडिंग द सैंपल एंड नॉट एडिंग द नॉलेज, देन फॉरगेट अबाउट द साइज ऑफ द सैंपल. कहने का मतलब है कि आप 200 सैंपल की जगह 400 सैंपल लीजिए और रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन आ रही है, देन ड्रॉप दी सैंपल साइज, ड्रॉप दी सैंपल साइज. लेकिन 200 सैंपल जो ले रहे हैं, लेकिन वो 200 सैंपल ऐसा लीजिए कि जो आपका इश्यू को समझे, रिप्रेजेंटेटिव हो, मेल और फीमेल हो, एजेड और यंगर हो, हाँ, और फिर लोअर इनकम में से और मिडिल इनकम में से हो, हायर इनकम में से हो. तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो, लैंडलेस में हो, बिग फार्मर में से हो. तो आप रिप्रेजेंटेशन को पकड़ के आप इश्यू को समझ के सैंपल लीजिए, तो आपको सैंपल साइज में जाने की जरूरत नहीं है. चलिए नेक्स्ट आप कर लेते हैं. कैन आई हैव ए 5 minutes ब्रेकअप? 5 minutes. हाँ, हेलो, can you give me 2 to 5 minutes? Yes, Hello? sir. Certainly, 2 sir. minutes. 2 minutes. Yes, sir. Yes, sir. 2 minutes. Yes. Because some guest has come to my room. 1 minute. Okay. हाँ Malik. Sir, nothing is visible. Yes, ma'am. Actually, our resource person is take a break for the 2 minutes. He will be come soon, and then he will be start. And dear all participants, Vimal Trivedi sir will be take a second session also at 3 o'clock. So we will be meet him again at that time also. And here I want to share with you that we all record the sessions. Every sessions we record, and we put that in classroom as a link. So you can search there in classroom after the session also, and you can get the knowledge, and you can get the revise the lecture and knowledge after the session also. And it will be useful to your exam in this exam also. It will be on Friday or Saturday this week, and we are middle of the time of the course. So if you have any questions regarding the anything, so you can ask in our mail also, right? And the resource persons lectures, as we say that we put in classroom, but after 1 or 2 days, so wait for that, and we provide a link in that. And I think we hope you all submit your submissions timely, because without any submission we can't release your certificates. So after 25th we will be release your attendance certificate and that your grade certificate. So it will be required your all submissions. So just look after the carefully the submission part, right? And our resource person Vimal sir is with us. So we have 15 minutes, 10 minutes to in that also. Hello? So we will be continue with him. Yeah. Vimal sir. I will cover whatever the loss of time. Okay. So Yes. Because in our institute training program is going on, that is ICSSR sponsored program. So I have to introduce one resource person. Anyway, scaling technique, now you understand? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. now I will give you the second one, the missing value. Now you understand the missing value. There are 2 kinds of missing value in our survey research. 2 kind of. Understand very important these 2 aspects. Missing value, there are 2 type of missing. One that is user defined, and second one is system missing. मैं दोनों को आपको समझा देता हूं. User defined means when you ask the respondent, when you ask some question to respondent and respondent is not interested to answer. जब आप क्वेश्चन पूछते हैं
और रिस्पोंडेंट कहता है कि मुझे ये क्वेश्चन में आंसर नहीं देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा कि लास्ट इलेक्शन में आपने वोट डाला था, वो कह रहा है यस। फिर आप पूछते हैं कि किस पार्टी को आपने वोट डाला था, तो रिस्पोंडेंट कहता है कि मुझे उसका आंसर देना नहीं दे, ठीक है। एंड यू आर गिविंग कोड टू दैट आंसर। कीप इट इन माइंड, no answer, do not give you answer, that is also answer, that is also response in social science. और आपको मैं बताऊं कि SPSS have a one module, just like Word, Excel, PowerPoint, there is a one module that is a missing value analysis, and you know the cost of missing value analysis is 1.25 lakh. So the importance of missing value in the analysis is I will show you when the second session is to be conducted. मिसिंग वैल्यू फिर से मैं कह रहा हूं दो है। एक, हमने क्वेश्चन पूछा है, रिस्पोंडेंट मना कर रहा है कि मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूं। और सोशल साइंस में देयर इज अ थंब रूल, दैट इज 9 और 99। जब भी आपको इंटरव्यू शेड्यूल में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो आप इसको 9 और 99 कोड कर सकते हैं। 9 फॉर नो इंफॉर्मेशन, डोंट नो, लाइक दैट। 99 नो इंफॉर्मेशन, डोंट नो। अब आपको सवाल होगा कि 9 और 99 क्यों? 9 और 99 का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने पूछा कि आपका रिलीजन क्या है, रिलीजन, तो वो आपको कह रहा है कि मुझे मैं रिलीजन में मानता नहीं हूं। आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द रिलीजन, मुझे कहना नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, लाइक दैट। तो आप क्या कहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो आप क्या करें, 1 इज हिंदू, 2 इज मुस्लिम, 3 इज क्रिश्चियन, 4 इज बौद्ध, एंड द लास्ट 9 डोंट नो, नो इंफॉर्मेशन, डोंट नो, नो इंफॉर्मेशन। उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। बहुत बार ऐसा होता है, हम इन्वेस्टिगेटर को कहते हैं कि आपने रिलीजन पूछे बगैर घर में फोटोग्राफ देख के आप नहीं लिख सकते। घर में हिंदू देव देवतिया का फोटोग्राफ है तो आप नहीं लिख सकते कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है। सोशल साइंस में आप उनको पूछिए और आजकल जेंडर में हो रहा है। जेंडर में पहले लोग होते थे कि अपीयरेंस से जेंडर लिख देते, मेल और फीमेल। सोशल साइंस कहता है कि नहीं, अपीयरेंस से नहीं कर सकते, आपको पूछना पड़ेगा। आपको पूछना देख कि उसका अपीयरेंस मेल है लेकिन हो सकता है ट्रांसजेंडर, तो मेल फीमेल ऐसा नहीं कर सकते। तो जेंडर में भी आज लोग नई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आपको 1 2 3 ट्रांसजेंडर एंड 9 नो इंफॉर्मेशन। चलिए, ये तो 9 हो गया। जब कोड 1 डिजिट में है तो आप 9 नंबर नो इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। लेकिन जब इंफॉर्मेशन मोर देन 9 हो, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, और आपने एजुकेशन लिखा इलिटरेट, लिटरेट, फिर 1 to 5 स्टैंडर्ड, 6 to 8 स्टैंडर्ड, 9 to 10 स्टैंडर्ड, 11 12, then college continue, college completed, that is a graduate, then postgraduate continue, postgraduate completed, like that, and you have given code 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 is a code, 9 is like a postgraduate. So you have given 9 for postgraduate. So here there is no question, give 9 for no information. So here 99 is no information. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. समझ गए? तो ये यूजर मिसिंग हुआ। एंड द सेकंड वन इज सिस्टम मिसिंग। सिस्टम मिसिंग मींस आपने क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, और जहां आपको 9 और 99 नहीं करना है वहां आपको ब्लैंक छोड़ना है, वहां आपको डेटा में ब्लैंक छोड़ना है। अब सेम क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन मैंने पूछा था ना कि आपने इलेक्शन में वोट डाला था, अब वो कह रहा है कि नहीं, मैंने लास्ट इलेक्शन में वोटिंग
नहीं किया था, मैंने व्हाट नहीं डाला है। अब आप सोचिए, द सेकंड क्वेश्चन जो हमने जिसने वोट डाला था उसको पूछा था कि किस पार्टी को आपने वोट दिया। अब यहां वो कह रहा है कि मैंने वोट डाला ही नहीं है। आपका क्वेश्चन है किस पार्टी को, आप पूछोगे? आप नहीं पूछोगे। इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट, क्योंकि उन्होंने वोट डाला ही नहीं है, तो किस पार्टी का तो सवाल ही नहीं है। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो वहां आपका रिस्पॉन्स रहेगा ब्लैंक। इज इट क्लियर? और इसको कहते हैं सिस्टम मिसिंग। सिस्टम मिसिंग वेयर ए कॉलम इज लेफ्ट ब्लैंक, वेयर ए कॉलम इज लेफ्ट ब्लैंक। और सेकंड वन है कोडेड मिसिंग, दैट इज ए यूजर डिफाइंड 9 और 99। इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Third one is, Absolutely clear. third one is, and I have given, third one is important, आप ये भी समझ लीजिए। थर्ड वन इज मल्टी रिस्पॉन्स। ये मेजरमेंट में ही है, मल्टी रिस्पॉन्स। जब आपने एक क्वेश्चन पूछा है और मोर देन वन आंसर आता है, तो आप इसका कोडिंग इस तरह से करते हैं, इसका कोडिंग इस तरह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया डिड यू यूज इन द लास्ट 1 ईयर, डिड यू यूज इन द लास्ट 1 ईयर। और आपका कन्वेंशनल कोडिंग था फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, वी चैट, ट्विटर, रेडिट, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम एंड 9 अदर। एक और चीज मैं बताऊं, जब भी आप कोडिंग करते हैं तो आप प्री कोडिंग, दैट मीन्स क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो आप, मेरा एक सजेशन है, क्लोज एंडेड करते हैं तो आप एक कोड एक्स्ट्रा लगा दीजिए, अदर। आप उसमें कोड एक एक्स्ट्रा लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल आपका 1 2 3 4 5 कोड है, ठीक है। आपने पूछा कि कौन सी आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा 1 क्लोजअप, 2 कॉलगेट, 3 ये, 4 5 एंड 6। आपको मालूम है कि मैक्सिमम 6 टूथपेस्ट रिस्पोंडेंट यूज करते हैं, तो आपने 1 2 3 4 5 6 कोड कर दिया। वहां एक कोड आप डाल दीजिए 9 अदर, 9 अदर, और फिर लिख दीजिए 9 अदर एंड फिर लिख दीजिए डिटेल। उसका फायदा ये है, मैं अगेन कह रहा हूं, टू रिड्यूस दी सैंपल एरर, टू रिड्यूस दी सैंपल। क्यों 9 लिखना है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब आप आउटपुट निकाले तो 4 और 5 का परसेंटेज वेरी निग्लिजिबल हो, 4 और 5 का परसेंटेज वेरी निग्लिजिबल हो, और अदर जो है उसका परसेंटेज ज्यादा हो। तो जब आपने लिखा है कि अदर में स्पेसिफाइड कीजिए, तो आप इसको फिर से कोडिंग कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? यस यस सर। वो इलेक्शन में नोटा आता है ना, इलेक्शन में नोटा, वो वही है ना सर? हाँ, नोटा। तो नोटा में आप पूछ लीजिए कि आपने क्यों नोटा को क्यों आप है, तो वो एक्सप्लेन करेगा कि इसलिए 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 इसलिए। तो फिर आप नोटा को कोड फिर से दे सकते हैं कि 1 2 आपने दिया, यस एंड नो, यस एंड नो, और ये, ठीक है, नोटा। तो फिर नोटा को 3 नोटा इज, 4 नोटा इज, 5 नोटा दिस, 6 नोटा दिस। तो आपको एक रिच इंफॉर्मेशन मिलेगी, एरर रिड्यूस होगी। इज इट क्लियर? तो बहुत बार ऐसा होता है। अदर का मतलब है कि ये प्रोमिनेंट कैटेगरी है, 1 2 3 4 प्रोमिनेंट कैटेगरी है, जिसमें 90 to 92% डेटा मेरा आ जाएगा, बाकी का 4-5% है वो अदर में आएगा, इसलिए आपने अदर रखा है। लेकिन जब अदर ही 20 to 25% हो जाता है, तो आपको अदर को स्पेल आउट करना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इंटरव्यू शेड्यूल बनाते हैं तो मेजरमेंट ध्यान रखिए, ऐसा अदर कैटेगरी रखिए। एंड दिस वन कि आपने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने किया है 1 दैट इज फेसबुक, 2 3 व्हाट्सएप, 5 ट्विटर, और लास्ट में कह रहा है इंस्टाग्राम 8। तो आप कोडिंग क्या करोगे? 1 3 5 एंड 8। तो 1 3 5 8 आप एक्सेल में 1 3 5 8 ऐसा आप डेटा एंटर करोगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन हुआ है।
but it is a wrong. It is a wrong coding. It is a wrong data entry, and you will not get the result. You will not get the good result. अगर आपको गुड रिजल्ट चाहिए तो इस तरह का क्वेश्चन जो है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 41 है, सो बेस्ट वे आप इंटरव्यू शेड्यूल में ये पूछिए, लेकिन जब आप कोडिंग करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, तो आप कहिए क्वेश्चन 41.1 फेसबुक नो यस, 41.2 लिंक्डइन नो यस, व्हाट्सएप नो यस, वीचैट नो यस, ट्विटर नो यस. तो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन 41 and one data entry, now you have a 9 variable. Instead of one question, now you have a 9 question, 9 variable, 9 outcome. फॉर एग्जाम्पल अब मुझे कैसे करना है एंट्री? फॉर एग्जाम्पल आपने कहा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम 1, 3, 5 एंड 8. तो अब मैं क्या करूंगा, इसी में यहाँ जो बॉक्स है, तो यहाँ एक्सेल का मैं लिखूंगा कि क्वेश्चन 41.1, तो यस क्योंकि उन्होंने फेसबुक टिक मार्क किया है, तो मैं वहां कोड करूंगा 1. लिंक्डइन नो क्योंकि उन्होंने टिक नहीं किए. फिर व्हाट्सएप यस मीन्स 1, वीचैट 0 नो, ट्विटर यस मीन्स 1, रेडिट नो 0, स्नैपचैट नो 0, इंस्टाग्राम 1 यस एंड अदर नो. तो आपका कोडिंग क्या होगा? 41.1 फेसबुक में यस 1 आएगा, लिंक्डइन में नो. तो इंस्टेड ऑफ 1, 3, 5 एंड 8 ऐसा कोडिंग की जगह आपको अभी स्पेल आउट कर दिया 9 वेरिएबल में, और आपने उस तरह से एंट्री की 41.1, 41.2, 41.3, ईच वेरिएबल एज सेपरेट सेल इन एक्सेल. ठीक है. और फिर जब आप एसपीएसएस में प्रोसेस करते हैं, तब फिर से ये 9 वेरिएबल को एक वेरिएबल करते हैं, 9 वेरिएबल को एक वेरिएबल करते हैं. और इसलिए मैंने आपको जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो आप 2 घंटे में भर दीजिए, 2 घंटे में भर दीजिए. अगर हो सके तो एक्सेल में डेटा एंट्री कर दीजिए, एक्सेल में ईच सेल का डेटा एंट्री कर दीजिए. मैं बताऊंगा कैसे डेटा एंट्री करते हैं, मैं आपको बताता हूं. तो आप फिलअप कर दीजिए, डेटा एंट्री कीजिए, तो मैं आपको मल्टी रिस्पॉन्स टेक्निक बताऊंगा. सो डेटा मेजरमेंट, स्केलिंग, मिसिंग वैल्यू, एंड द लास्ट वन इज मल्टी रिस्पॉन्स. So data capture is important. So is it clear? Any question? So I will introduce the that Excel sheet. Sir, in ordinal scaling, when should we keep the neutral, sir? Please. In ordinal scaling, when should we keep the neutral or not? Neutral. Why? Because there is a equal distance between strongly angry and strongly disagree. Understand? And we are not providing 0. We are providing 3. Generally, you can see that neutral always 3. Sir, forcefully it can be eliminated. You can eliminate it if you know that in certain question neutral is not possible. Then you can eliminate it. But you need to give a space. You need to give the space to the respondent. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. You have to give space. And that is why I say that 9 is other. 9 is other. Because you have a code 1 to 5. But provide one more code, 9. That he is not interested in your 1 to 5 category. She is not interested in your 1 to 5 category. She is interested other than these 5 categories. Then what to do? Then you have to provide an option that give me one code. Okay. Any question? Yes, sir. Maybe all questions are included and covered. So in this session, before I conclude, I have to introduce this Excel file. Okay, sir. You can. Excel file. Okay. Now you just see the Excel file. Is it visible? Yes, sir. Okay. Is it visible? Yes, visible perfectly. Okay.
So you can enter the data like that. Now, Q1. sir, it's not visible. Just No, one sir. second before. No, sir. No, sir. Just 1 second before it's visible, sir. But right now it's Now not it is. visible. Now it is. Yes, now it is visible. Okay. Yes, sir. Yes, yes. Okay. So you fill up the interview schedule. Consider that you are the respondent, and this is the survey of academic library. I will show you three things. One, how to enter the data. Second, I will show you how to process the data. And the third one is how to identify the research gap of this study. देखिए, आप समझ लीजिए, हम डेटा कलेक्ट करते हैं तब दो चीज ध्यान में रखते हैं. एक, कि अर्लियर स्टडी में क्या छूट गया है, ठीक है, इसको कहते हैं रिसर्च गैप. और दूसरा है कि अर्लियर स्टडी का फाइंडिंग क्या है, क्या मेरे स्टडी में है. ये दो चीज लेके हम स्टडी करते हैं. ठीक है, एक सिंपल चीज कहता हूं कि अर्लियर स्टडी में रिसर्च गैप आपको ढूंढना है तो कोई भी आर्टिकल ले लीजिए या कोई भी जर्नल का बुक या कोई बुक ले लीजिए ऑथर का, आपके स्टडी का, आपके स्टडी रिलेटेड का, और उसमें ऑथर ने कहा है, उसमें ऑथर में जिक्र किया है कि मेरा टाइम या कंस्ट्रेंट की वजह से मैं ये इश्यू को नहीं ले सका. तो एक पहला आपके लिए रिसर्च गैप हो गया. इज इट क्लियर? यस सर. तो ये इस तरह से आप आपका रिसर्च गैप ढूंढ के आप अपने एरिया, तो ये एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर. दूसरा हुआ कि एक डेटा है, एक टेबल है, एक आउटपुट है. फॉर एग्जांपल किसी ने कोरिलेशन निकाला है आपके जैसे स्टडी का, किसी ने बाइवेरिएट एनालिसिस किया है, किसी ने मल्टीवेरिएट एनालिसिस किया है कि गांव में जिसके पास जमीन है उनकी स्थिति क्या है. अब वो एनालिसिस है, वो एनालिसिस को देखते हुए आपको देखना है कि उन्होंने एनालिसिस के टाइम किस वेरिएबल को या किस क्वेश्चन को पूछना चाहिए जो पूछा नहीं है, या एनालिसिस करना चाहिए वो किया नहीं है. ठीक है, स्टडी है, आपका फील्ड वर्क अलग है, लेकिन मोर और लेस जो इश्यू है वो सेम है. तो आपको क्या ऑथर से छूट गया है वो आपको पहले पता लगाना है. तो वो भी चीज मैं ये सर्वे में आपको बताऊंगा. ठीक है, ठीक है. तो आप क्या कीजिए, ये इंटरव्यू शेड्यूल आप फिलअप कीजिए और कोडबुक के मुताबिक उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कीजिए. ठीक है ना, इंटरव्यू शेड्यूल में. फॉर एग्जांपल आपको पूछा है कि लाइब्रेरी आप फ्रीक्वेंटली कितना यूज करते हैं, तो आप जो डेली यूज करते हैं तो डेली का एक कोड है, तो उसके सामने जो बॉक्स है वहां 1 लिख दीजिए. ठीक है. फिर आप लाइब्रेरी का क्यों यूज करते हैं, तो कहते हैं कि मैं लाइब्रेरी को बुक के लिए यूज करता हूँ, डेटाबेस के लिए यूज करता हूँ, और लास्ट में जेरोक्स के लिए यूज करता हूँ. ठीक है, तो वहां आप वहां टिक मार्क कर दीजिए. अब टिक मार्क का कोड क्या है वो आप कोड कर दीजिए. क्या आपको वो एंटर करना है कि जो अभी अपने मैंने मल्टी रिस्पॉन्स बताया उस तरह से? अगर मल्टी रिस्पॉन्स करना है तो आप ये इस तरह से Q2.1, ये आप देखो, ये है ना पहली रो में Q1, Q2.1, Q2.2, Q2.3, Q2.4, 2.5 करके 2.8 लास्ट में है जेरोक्स और उसके लिए 2.8 है. तो देखिए ये जो रिस्पोंडेंट है वो नहीं कह रहा है कि मैं जेरोक्स के लिए लाइब्रेरी में, नहीं तो इसका 0 कोड है. 2.7 क्या है, व्हाट इज द 2.7? आप देख लीजिए 7 नंबर की कैटेगरी क्या है, लाइब्रेरी आप क्यों यूज कर रहे हैं. हेलो सर. फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी आप क्यों यूज कर रहे हैं, तो पहला है फर्स्ट है बुक्स है, फर्स्ट बुक्स है. सर हमको नहीं दिख रहा है इसमें. It is not displayed, sir. नहीं डिस्प्ले नहीं, आपको तो शेयर किया है ना. हेलो मैं एक मिनट 1 मिनट आई विल शो यू 1 मिनट. स्टॉप शेयरिंग. नाउ आई एम शेयरिंग होल स्क्रीन. हाँ, योर एंटायर स्क्रीन. क्यों शेयर नहीं हो रहा है एंटायर स्क्रीन? ओके, नाउ आई विल गो थ्रू 1 by 1. okay.
Now I am going to schedule. Okay, this is now you can आप देख सकते हैं? यस सर। हाँ, तो ये Yes, sir, इंटरव्यू शेड्यूल आपके पास है। देखिए, पहला है कि आप लाइब्रेरी किस लिए यूज करते हैं। हाउ ऑफन डू यू विजिट द लाइब्रेरी? तो डेली, वीकली, एवरी वीक। तो फॉर एग्जांपल सुनिए, हाउ ऑफन डू यू विजिट लाइब्रेरी? तो कह रहा है डेली, तो आप कोड कीजिए 1। कोई कह रहा है एवरी 2 वीक, तो कोड कीजिए 3। कोई कह रहा है मंथली, तो कोड कीजिए 4, या 4 कीजिए। फिर कहता है हाउ ऑफन डू यू विजिट लाइब्रेरी? हाँ, तो आपका क्वेश्चन 1 है ना, हाउ ऑफन डू यू विजिट लाइब्रेरी, क्वेश्चन 1। ये देखिए क्वेश्चन 1, ये बॉक्स। तो कह रहा है एवरी 3 वीक, तो एवरी 3 वीक का क्या है? कोड 3। तो यहाँ आप 3 लिख दीजिए, यू राइट डाउन 3। फिर कहते हैं कि मैं लाइब्रेरी डेटाबेस के लिए कह रहा हूँ, मीन्स यहाँ 1, तो यहाँ आपका कोड आएगा 1, यहाँ आएगा कोड 1। फिर फाइंड ए बुक, वो कह रहा है यस मैं फाइंड ए बुक, तो कोड आएगा 1। फिर कहता है फाइंड ए जर्नल, वो कह रहा है मैं जर्नल के लिए नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ 3 में कोड आएगा 0। फिर फाइंड ए थीसिस, तो कह रहा है यस, तो ये 4th नंबर जो है, क्योंकि यहाँ 4th में वो टिक मार्क कर रहा है, फाइंड ए थीसिस, यहाँ फाइंड ए, तो ये 4th में यहाँ 1 आएगा। तो जहाँ यस कहता है वहाँ 1 आएगा, जहाँ 2 कहता है 0 है। फिर क्वेश्चन है हाउ ऑफन डू यू यूज द लाइब्रेरी वेबसाइट? तो वो कह रहा है कि एवरी 3 मंथ्स में लाइब्रेरी की वेबसाइट करता हूँ, तो इसका कोड है 5, तो कोड यहाँ 5 कर दीजिए, यहाँ कोड 5 कर दीजिए। इस तरह से आप डेटा फिलअप कर दीजिए, ऑल द 13 वेरिएबल, एंड देन यहाँ आप डाल दीजिए, या एक्सेल में आप एंटर कीजिए, इस तरह से एक्सेल में एंटर कर दीजिए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यस सर। तो आप इस तरह से डेटा एंटर कीजिए, इंटरव्यू शेड्यूल है, कोड बुक है, और डेटा एंटर कीजिए। इज इट क्लियर? सो अवर नेक्स्ट सेशन इज हाउ टू एनालाइज द डेटा। ओके, चलिए। यस सर। So at what Yes, time thank we you, will sir. meet? So at 3 o'clock? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Our Thank you. So, the resource person will be on next session 3 o'clock. And thank you very much, sir, for the first session. We will meet again with the second session. And here all comments are very wonderful. Thank you, sir, and great session. And our coordinators are also commented here very fruitful lecture to all participants of social science. So he is also happy with this session. And dear all participants, we have to must be thankful to Rajendra Jani sir. Also, he regularly provided us this level of knowledgeable resource person for you all. So thank you, Rajendra Jani sir, and Dr. Vimal Trivedi sir. Thank you very much to this wonderful session, and it is a very much useful for all participants, and it is interactive also. So we will be meet again with 3 o'clock with our this resource person Vimal Trivedi sir again. Till time, everybody, namaskar. okay, thank you.